because we choose as per status symbol. लोग क्या बोलेंगे? My friends will be proud of me or my friends will be jealous of me. So let me choose something which will give me some status symbol. So first is the purpose should be very clear. उसको पहले clearly देखो. Why am I doing it? उसको लिखो. Maya will keep on telling you are choosing because of money, because of status, because of pleasure. You want to do it for pleasure, for happiness. You want to marry for pleasure. You have to say no. I am going to marry for stability. Then is this girl right for me or some other girl is right for me? So first the purpose should be very clear. Second, on the left petal you have the Agnya Chakra 8 petals. On the left petal you put the purpose. On the right petal are the different options. You have to know all the available options for fulfilling the purpose. And what will help you to get the options? What will help you to get the options? Take the correct decision. No. How will you know the correct options? Like suppose you are taking a decision to buy a fridge. Why are you buying a fridge? Why? What is the purpose of buying a fridge? To store things. To store my food for a longer time. My purpose is not to save money. Otherwise I will buy a cheap fridge. My purpose is not to show off to my friends or I will buy an expensive fridge. My purpose is to find the optimum device which is going to keep my items cool and storage and which is as per my choice. Okay? Now, what will tell you the different options available? What will tell you? या चित चित्त का कहाँ से आता है information? जो स्टोर है. Stored है, only stored है. Will you only rely on what you know? Surrounding. Yes, wisdom. So wisdom, knowledge, awareness. You have to ask people. You have to get the knowledge. It could be from Google, from newspapers, from friends, from contacts. You have to first know all the available options. First is the purpose should be very clear. Second, all the available options should be there right in front of you. After that, what you do? When these two things are very clear, now you have to choose. You don't compare actually. How do you choose? You look into the past. You look into the future. कि पहले इसके साथ मेरे साथ क्या क्या हो चुका है. Just look. Just look. You look into the future. कि आगे मुझे इसका क्या यूसेज है. Past देखो, future देखो. Without the fear of the past, without the fear of the future, you have to take a decision as per the components of the now. This is the formula for taking decisions. You have to know the purpose. You have to know all possible. Today, why we don't take correct decisions? Because we don't even know all the options. आज एक फ्रेंड कहता है एक काम कर, एक ऑफर अवेलेबल है, तू यहाँ आ जा, प्लीज जाओ. I want to buy a mobile. Somebody says अच्छा एक काम कर, ये ले ले, HTC का ये मॉडल ले ले, please buy. But then later on we say I'm not happy. Or we find somebody else getting a better mobile, cheaper but more features. We feel we are taken advantage of because you did not do this. You did not see your purpose. Do I want to do more of images? Do I want to do emails? Do I want to do more of music? I did not see the available options. We don't see, we don't use wisdom. Then we don't use past में मेरा मोबाइल के साथ क्या experience था. Future में what are my needs? Then without the fear and without the fear of the future and past, you take a decision in the now. That helps you to take decision. Okay? So this is the way we take decisions. Are we ready to do a meditation? Yes? One small question. Animals are only body conscious, even though it does not sound. Yeah, so It will is not connecting to the sound. Only it is body conscious. Then how it is making progress in the evolution? It's not making progress. A dog is still a dog. Right, in the next birth. In the next birth, that sound should progress, no? Or it should mingle with the Almighty, or it should make progress. Either the two. How it should make? See, what happens is that animal consciousness, no, every time when he takes a birth, he learns all tools of survival. पहले वो एक छोटा सा one-celled animal बनके he learns the tools of survival. Next time he becomes an amoeba.
then he becomes a land animal, then he becomes a land and a water animal. So it is like Dash avatar of Vishnu. You keep on taking different avatar, and every time you learn tools for survival and you become better. और finally जो आपकी last योनि होती है, it could be a योनि of a guy. कहते हैं cow योनि is the last योनि as an animal. कहते हैं तो cow की योनि होती है या वानर की योनि होती है. ये 2-3 योनियों में जब तुम घुसते हो, after that you take a मानव. It's not connection. You learn tools of survival. क्योंकि today we know how to survive. Today हमको survival के बहुत सारे tools already पता हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जन्म ले चुके हैं. बहुत सारे जन्मों में हमने कभी नेस्ट बनाया है, कभी कुछ बनाया है, कभी अपने आप को बचाया है, कभी ऑक्टोपस की तरह इंक फेंकी है. We know how to protect ourselves actually. We don't have to be taught. We know many methods of survival. तभी हमने इतने सारे gadgets बना लिए survival. Now our lessons are not of survival anymore as a human being. We are not taught how to survive. आपके कौन से education system में you are taught how to defend yourself or how to protect? You are not taught. Because already the survival systems are in place. Yes or no? We are never taught how to defend ourselves. We are from the time we are born, we go to school for mind consciousness. We only go for mind consciousness. Yes or no? So we are not taught anything of the body, everything of the mind, and later on of the soul. ये स्टेज पे आने के बाद और कितना जन्म लेना पड़ेगा? We are on the first stage of human being. So to get to the moksha, how many births? It could be this birth or it could be next birth. It won't be more than that. Maximum this birth or next birth. और मोक्ष के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया and you decide that I am ready to leave, I am ready to resign and I am ready to live like a soul. अपने आप consciousness takes over and they take you on a journey. You are taken on a journey. It is another word, पर वो word बहुत difficult नहीं है. आपको छोटी सी बुद्धि मारनी है यहाँ से यहाँ. It is not difficult. So it is the time you realize. पर जब आप कब realize करोगे? आपका मन, आपका mind और आपका body should be quite satisfied. क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं ना. आपका mind and body dissatisfied होगा, वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं. They will not leave you. They will not leave you to go on your journey of soul. तो सबसे पहले अपने आप से बहुत vital question पूछो. 10 दिन के बाद if I am going to die, मुझे क्या क्या करना है? फटाफट उसको complete करो. Maximum it will take you 1 या 2 साल to fulfill yourself. जितना खाना है खा लो, जितना घूमना है घूम लो, जितनी टीवी देखनी है, जितना एंजॉय करना है, जितनी मस्ती करनी है, do it. Just do it. In this world there is nothing wrong, nothing right, nothing less, nothing more. Just do it. And be full. Don't live a very small life. छोटी जिंदगी मत जियो कि मुझे बचाना है पैसे, बच्चों के लिए बचाना है, फैमिली के लिए बचाना है. उड़ा दो उसको, पूरा खत्म करो, चला दो. बिल्कुल. Just spend money. And I'm telling you, you'll be very surprised because you have experienced all this. You'll be very surprised. Actually you do it ना. एक अंदर होता है कि मैंने हमेशा तंगी देखी है, हमेशा हाथ ऐसे करके जिया है. I am telling you, carry a checkbook and a card with you and go and buy a 50,000 का पर्स. बहुत मजा आता है. Just go and do it. You feel super. Just treat yourself. जाओ, आपका मन करता है ये खरीदो, खरीदो, बिना रेट ही मत देखो क्या टैग लगा हुआ है. खरीद लो, ओके फाइन. पता है बैंक में कुछ लाख रुपए है. सोचो, don't think I want to keep it for some rainy day. Just spend it. You'll be very surprised. आपका मन बार नहीं करेगा. आप and then after that don't feel guilty. ये तो रिद्धि बन जाएगी. After that, be very happy. Wow, what I got. Wow, great. Feel happy, feel proud. आपका मन को शांत होना जरूरी है और मन को रिलीज करके शांत नहीं कर सकते. You have to first satisfy yourself. It's a strong projection of our thought manifesting into reality.
सरप्राइज, आपको लगता है कि हमारी डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है ज़्यादा है, फिलफिल करने तो जाओ, यू विल रियलाइज ज़्यादा है ही नहीं। कितना खा लोगे, कितना घूम लोगे, कितना देख लोगे, कितना पोजेस कर लोगे, कितना खरीद लोगे। प्रॉब्लम होती है हम 4 सैंडल्स खरीदते हैं और हमें लगता है वो कितने सैंडल हो गए, कितना मैं खर्च कर रही हूँ, फिर भी सैंडल का मन करता है पर मन दबाते हैं। अरे खरीदो ना 20, 25, 30, 50, you'll be surprised, मन भर जाएगा। But don't feel guilty, enjoy every sandal, every day wear that new sandal, enjoy, बस अपने कपड़े खरीदो, you'll be surprised। और एक्चुअली इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, you have money for that। जितनी आपकी डिजायर्स है ना उसके लिए पैसा है, उस कंजूस मत बनो। हमको साइकोलॉजिकली क्यों ऐसा होता है कि देयर इज ऑलवेज लेस? या बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइवल ऑफ माय बॉडी एंड माइंड। जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया एंड यू स्पेंड, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपीरियंस। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी बहुत ईजी है पर हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि हमें ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। हमें किसी को गाली देना ईजी लगता है, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है, किसी के साथ कंपेयर करना बहुत ईजी लगता है, किसी को हक करके अपना बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। हमें पैसा बचाना फियर इजी लगता है, पैसा खर्च करना डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज दिस इज अ फियर ऑफ द माइंड एंड बॉडी। और जिस दिन आपने वो फियर निकाल दिया, और फियर निकालने में कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं करने, छोटा सा ATM कार्ड लेके जाना है और मार्केट जाके खर्च कर देना, सिंपल, छोटा सा। डोंट फील गिल्टी फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर वाइफ, जस्ट एंजॉय एंड यू बी सरप्राइज्ड। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपकी डिजायर्स एंडलेस नहीं है। यू विल फील कि आज मैंने जाके 4 कपड़े खरीद लिए, मैं और ग्रीडी जाऊंगा और खरीदूंगा, नहीं होगे। आपका मन ऐसा है कि आप शांत हो जाओगे। आप जाओ 4 शर्ट खरीदो, थोड़ा मन करे 5 और खरीदो, फिर लगेगा यार 3-4 और होते वो भी खरीदो, 2-3 और खरीदो, उसके बाद मन हो जाएगा यार कपड़े की बात मत करो, कपड़े की बात मत करो। घर की अशांति कैसे संभाले? बार-बार जो मन करता है, जो भावना होती है, उभरती है कुछ चीजों की, ठीक है ना? और कुछ चीजें ऐसी होती जो नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए क्या करना है उस पर? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप समझिए आपकी भावना होती है और वो चीज़ नहीं मिल पाती है। अंडरस्टैंड, इट्स एन इल्यूजन। आपकी भावना उसको किस चीज़ के लिए होती है? आज आपकी भावना है कि मुझे टेस्ट चाहिए, मुझे फूड टेस्टी है, मुझे फूड के साथ इंजॉयमेंट चाहिए। वो भावना कभी पूरी होगी ही नहीं, आप गोल गोल मृत की तरह जाते रहोगे। टुडे योर भावना इज ऑफ रोमांस, आई वॉन्ट दिस वुमन इन माई लाइफ, बट यू वॉन्ट फॉर रोमांस। रोमांस एक्चुअली इल्यूजन है, वो इल्यूजन होता ही नहीं है, बिकॉज यू एक्चुअली वॉन्ट अ वुमन ओनली फॉर स्टेबिलिटी। द डे यू से आई वॉन्ट फॉर रोमांस, इट इज लाइक, मैंने आपको उस दिन क्लासिक एग्जाम्पल बताया था कि आपके सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, एक्चुअली वो आपको लग रहा है वो सांप है पर एक्चुअली रस्सी है। आपके सामने वो साइड में छोटी सी एक काली दिख रही है, आपको लगता है कि वो तो सांप है पर एक्चुअली वो रस्सी है। अब क्या आप उसको मार सकते हो? क्यों? क्योंकि वो रस्सी है। और क्या आप डर निकाल सकते हो? क्या आप डर निकाल सकते हो? नहीं, वो सांप है। यस और नो? तो आपको वो सांप जो है, वो रस्सी जो है सांप रूपी दिख रही है, आप डर निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली सांप है तो रिगल होके काट सकता है ना, सांप तो है, वो मार भी नहीं सकते क्योंकि रस्सी है। तो आज आपकी जो भावना है जो बार बार आती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो, भावना क्या है? आपकी भावना क्या है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक। ड्रिंक इज एन इल्यूजन बिकॉज ड्रिंक टेल्स यू दैट आई एम देयर टू टेक अवे योर पेन्स, बट ड्रिंकिंग नेवर टेक्स अवे योर पेन। तो वो बार बार आएगी। आपकी भावना है आई वॉन्ट टू एंजॉय फूड। फूड एंजॉय देता ही नहीं, फूड तो नरिशमेंट देता है। फूड कहेगा भाई मैं एंजॉयमेंट तेरे को दे नहीं सकता, पर आप एंजॉयमेंट चाहते हो तो वो रस्सी हो गई। यू वांट अ वुमन फॉर रोमांस, वुमेन रोमांस दे नहीं सकती। सो टुडे यू हैव टू सी योर भावना फॉर व्हाट यू वांट। उसका कनेक्शन ही गलत है। बिकॉज कनेक्शन गलत है, यू आर लाइक अ डियर हु इज ऑल द टाइम रनिंग, क्योंकि प्यासा है तो पानी की तरफ जाता है, पर वो पानी तो है नहीं, वो तो मृत कृष्ण है। तो जाते हो, मिलता नहीं है, डिससैटिस्फाइड हो। तो डिससैटिस्फाइड
सेटिस्फैक्शन निकाल नहीं सकते, सेटिस्फैक्शन कर नहीं सकते, तो आप गोल गोल घूमते हो। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, भावना को देखो। व्हाट इज माय भावना? आज अगर आपकी भावना है कि मुझे अमीर बनना है, अगेन इज अ कृष्णा, विद कृष्णा, अमीर क्यों बनना है? अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमीर जो है जस्ट लाइक खाने के साथ टेस्ट आता है, वैसे ही लाइफ पर्पस के साथ और कर्म के साथ पैसा। आज आप सोचो कि मैं लॉटरी कर लूं, डकैती कर लूं, कुछ कर लूं और मुझे पैसा आ जाए, नॉट पॉसिबल। फिर वो तृष्णा हो जाती है, बिकॉज मनी कम्स बिकॉज ऑफ लक्ष्य। आप कुछ करते हो तो पैसा आता है, बट यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर मनी, तो इट्स लाइक अ बिग तृष्णा, इट इज गोइंग राउंड एंड राउंड, इट इज मेकिंग यू गो इन सर्कल। तो यू हैव टू सी योर डेफिनेशन कि आप किस चीज की भावना है। अगर वो भावना सही है, इट इज फॉर फूड विच इज फॉर नरिशमेंट, इट इज फॉर लिविंग योर लाइफ पर्पस, इट इज फॉर मनी थ्रू योर लाइफ पर्पस, पक्का सच होगा। इट इज फॉर नेम एंड फेम थ्रू योर लाइफ पर्पस, सच होगा। इट इज फॉर अ वुमन फॉर स्टेबिलिटी, सच होगा। इट इज फॉर हैविंग योर चाइल्ड गेट अ गुड एजुकेशन बिकॉज ऑफ एनहांसिंग योर स्टेबिलिटी, सच होगा। Any other question? Desire should be within the means. Yes, not only desire, it should be within the means. No. हमको पैसा ही नहीं है तो देखा कैसे जाएगी? आपकी डिजायर वही होती है जो आपके मीन्स में होती है। We should not see, we should not restrict ourselves that it is within our means. आज आपका डिजायर है कि I want to go to Switzerland, right? But it could be a desire that I want to go out. I want to just be away from everywhere. I want to experience nature and beauty. You can go to Darjeeling, you can go to Lonavala. So you will be able to fulfill your desire. तो आप desire को देखोगे, it will be fulfilled in your means. There is always an alternate. आप Google में नेट सर्फिंग करके भी desire को fulfill कर सकते हैं. It is your level of satisfaction. तो desire सारी fulfill होती है, but they have to be fulfilled. Only then you can start your journey. उसके बिना they will keep on calling you. Your mind, body will not release you. What about intuition, which is connected to that? Intuition. Intuition, see, when you are connected to your soul, definitely you get intuition. और जब आपके मन में प्लेजर पेन की रिक्तियां ना हो, जब डेफिनेशन ही नहीं होगा, आज प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। आपने हर चीज को डिफाइन कर दिया है, ये छोटा, ये बड़ा, ये महंगा, ये सस्ता, ये मुश्किल, ये आसान, ये बड़ा, ये छोटा, ये इम्पोर्टेंट, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये पाप, ये पुण्य, ये मॉरल, ये इमोरल, ये गलत, ये सही। जब आपके मन में इतने सारे डेफिनेशन है, हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन? बिकॉज दैट इज डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन योर ईगो. So in order to actually see, you have to destroy all the definitions. You have to destroy. अब उसके लिए बहुत सारी meditations होती हैं, और अभी हमारा टाइम जो है बातें एंड चैटिंग में टाइम हो गया है. So there are lot of meditations we can do, जिसमें आपको ये सारी की सारी definition को blast, you have to shatter it. ना कुछ छोटा, ना कुछ बड़ा, ना कुछ गलत, ना कुछ सही, ना कुछ moral, ना कुछ immoral. हर पर्सन ने अपने रूल बनाए, सही गलत, छोटा बड़ा, महंगा सस्ता, पास दूर, डिफिकल्ट इजी, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, रेयर एक्सपेंसिव, दीज आर ऑल डेफिनेशंस. और जब तक आपने ये डेफिनेशंस को ब्लास्ट नहीं किया, यू डोंट रियलाइज इट इज ऑफ अ मोमेंट. मुझे महंगा लगा उस समय, टुडे आई हैव वेल्थ, इट इज नॉट. सो अंडरस्टैंड, टिल यू डोंट डिसॉल्व दीज डेफिनेशंस, you will not be able to see the reality and you won't be able to take a judgment based on the reality. Otherwise, आपकी जो रित्ती है, they will not allow you to choose. You will choose something as per your fears, as per the definition of the mind and the body. You will choose something, you will compromise. You will choose something which is not as per what you truly want. You will compromise or shortchange your decision. So we have to understand कि ये spiritual journey है. Spiritual journey में personal spending is better or charity? Charity से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता. Charity is done by people who feel that maybe I have a guilt and I have to give to people.
कि charity is not something which is needed actually. It's you, it's your choice. आज आपको देकर खुशी मिलती है, do it. आज आपको it's your choice. God नहीं देखता कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, because there is no God, you are the God and you are actually giving to yourself only. आज आप खुद को कपड़े दो या दूसरों को दो, it is the same thing, because it is you only. लोग कहते हैं कि हम आए दुनिया में इसलिए कि आपको ईश्वर की तरफ देते ही हैं। हमको एक्चुअली ईश्वर की तरह नहीं जाना है. We have to achieve self-realization. वही इसी रास्ते में ले And what is self-realization? Realizing that you are also me. हाँ Self-realization is realizing that the other person is also the self. There is no God. कोई ईश्वर थोड़ी कोई और है. हम ही ईश्वर है. हमें रियलाइज करना है कि मैं भी ईश्वर हूँ, तू भी ईश्वर है, हम सब ईश्वर हैं and we are all one. आपका जो ईगो है वो भरसक प्रयत्न करता है to separate you from each other, to separate us from each other. ये छोटा, ये बड़ा, ये बुरा, ये मेरा हितैषी, ये मेरा दुश्मन. Your ego tries to separate you, and that separation is the cause of your pain. Today understand, आज हमारी yearning क्या है, आज हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है. I want to ask people, what is the true thing which gives you a lot of happiness? What is it? क्या चीज आपको जिंदगी में एक्चुअल खुशी देती है? क्या देती है? सबसे ज्यादा खुशी क्या चीज देती है? Okay, contentment and what makes the world go round? लोग किस चीज के लिए पागल है? Love. People are mad about love. Today our yearning, our unfulfillment, understand it is only love. आज हमको प्यार चाहिए. आज why an employee works very well in the company? Because he wants appreciation. Why do you want your friends to love you? Why do you want your spouse to love you? Why do you want your children to love you? Actually हमारी जो पूरी जर्नी है, पूरा जो unfulfillment है, पूरा जो yearning है, it is love. We want love. और हमारा क्या होता है? Our suffering, the biggest suffering is separation. और सबसे बड़ा हमारा suffering होता है जब हम separate होते हैं, जब हमें कोई betray करता है, कोई हमें hurt करता है, कोई हमसे दूर चला जाता है, हम किसी से दूर चले जाते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा पेन है इस सेपरेशन, और सबसे बड़ा जो खुशी है इज लव. बट अंडरस्टैंड व्हाट इज लव. व्हाट इज लव? आवर जर्नी एक्चुअली हमारा जो सबसे ज़्यादा हमें खुशी देता है इज टू एक्चुअली रियलाइज कि वी आर ऑल वन. हम एक्चुअली एक दूसरे के पास आना चाहते हैं. एक्चुअली हम महसूस करना चाहते हैं कि वी आर ऑल वन. क्योंकि हम खुद को अलग अलग रूप में देखते हैं, हमें एक सेपरेशन और हमारे ईगो हमें सेपरेट करता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. आवर सफरिंग इज बिकॉज ऑफ ईगो, बट आवर जर्निंग इज लव. आज हम किसी को दर्द देते हैं, किसी को किसका बुरा करते हैं, हम खुद उतना ही सफर करते हैं. आज हम किसी को बुरा बोल देते हैं, घर आके हमें दुख होता है, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों डांटा, मैंने ऐसा क्यों किया. यस और नो? सो अंडरस्टैंड हमारी जर्नी, हमारा जर्नी इज ओनली लव. बट अंडरस्टैंड वो लव क्या है. हमें लगता है कि आवर जर्नी इज लव. तो मूलाधार चक्र में वी फाइंड द लव ऑफ आवर फैमिली. क्योंकि हमें इनटेंजिबल चीज़ से लव करना हम बिलीव नहीं कर सकते. आज एक पर्सन से बोलो भगवान की पूजा कर, भगवान तो है ही नहीं, वो नहीं कर सकता. उसको मूर्ति चाहिए, उसको साक्षात मूर्ति चाहिए, तब जाके उसको भगवान दिखता है. वो तो जब हायर एवोल्यूशन होता है तब वो मूर्ति को हटाकर ध्यान में लगता है. जैसे ही इनिशियल हमको लव दिखता है अपनी माँ से, अपने फादर से, हमको लव दिखता है अपनी कम्युनिटी से. हम लव समझते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी. हम शरीर को छूते हैं. हम जब किसी को लव करते हैं, वी वॉन्ट टू कम क्लोज टू दैट पर्सन, वी वॉन्ट टू हग दैट पर्सन, वी वॉन्ट टू एम्ब्रेस दैट पर्सन. इट कुड बी अवर स्पाउस, अवर लवर, अवर चाइल्ड. वी वॉन्ट टू कम क्लोज. दैट इज द yearning. Now let me come to what is how the soul is connected to it. सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र में हम लव रियलाइज करते हैं थ्रू लव ऑफ द फैमिली. हम स्वादिष्टान चक्र में एक स्टेप ऊपर जाते हैं, where we realize कि I can love friends also, I can love people outside my family also. Initial evolution में हर person like an animal, he only cares about his own children.
आज एक बंदर अपने बच्चों को ही देखता है, बंदर डियर के बच्चों को नहीं देखता, कुत्ते के बच्चों को नहीं देखता. So understand, initially everybody loves their family. When you are more evolved, तुम फैमिली से बाहर आके you make friends. You start loving your unions, your partnership. आपका लव थोड़ा बड़ा होता है कि मैं अकेला ये नहीं, मैं दूसरों से भी प्यार कर सकता हूँ. फिर आप मणिपुर चक्र में आते हो. You become a leader. आपका दायरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है. You love all people. You love many many people जिसके आप लीडर हो. तो मणिपुर चक्र में आपका लव का दायरा बढ़ता है. फिर आप हार्ट में आते हो. हार्ट में तो आपका दिल और खुल जाता है. हार्ट में जाकर आपका लव अनबाउंडेड हो जाता है कि आई जस्ट लव. मुझे बच्चे प्यारे लगते हैं, मुझे जानवर प्यारे लगते हैं, मुझे सब कुछ प्यारा लगता है. आई लव. हार्ट में आपका लव खुलता है. एंड देन व्हाट हैपेंस? विशुद्ध में वी स्टार्ट सरेंडरिंग टू द डिवाइन विल. कि ऊपर एक बहुत बड़ा पावर है, गुरु है. देयर इज अ गुरु विदिन, देयर इज अ हायर कॉन्शियसनेस विदिन. वी स्टार्ट सरेंडरिंग इन विशुद्ध. विशुद्ध इज अ चक्र ऑफ surrender. Like the singer becomes the song, the healer becomes the healing, the speaker becomes the speaking. तो विशुद्ध चक्र में you learn surrender to the guru. Surrender कि मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, तू ही सब कुछ है. And once you come to आग्नेय चक्र, you become all. आग्नेय चक्र में you realize it is not the body love. Why we want to come close? Because we want to experience that we are all one. आज हमारी सबसे बड़ी सफरिंग है बिकॉज हमें सब लोग अलग अलग लगते हैं. हमें बुरा लगता है ये क्यों ऐसा है, ये क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों किया, उसके साथ भी ऐसा क्यों किया, ये इंसान खराब क्यों है. क्योंकि हम सबको माइंड और बॉडी से देख रहे हैं. और हमारा सेपरेशन जो है इज बिकॉज एक्चुअली वो लव है सोल का. वाई डू वी वॉन्ट लव? वॉट इज अवर हंगर, अवर यर्निंग? इट इज अ यर्निंग फॉर लव. इट इज अ यर्निंग फॉर रियलाइजिंग दैट वी आर ऑल वन. पर हमारी बॉडी टेक ओवर कर लेती है और बॉडी कहती है इट इज अ बॉडी लव. सो बॉडी क्या करती है? बॉडी ट्राइज टू पोजेस. कैन अ पर्सन बी पोजेस्ड? नो. सो बॉडी लव को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू मोह एंड पेन, अटैचमेंट, पेन. तो लव का रूप बदल जाता है और वो लस्ट बन जाता है, वो पोजेशन बन जाता है, वो अटैचमेंट और पेन बन जाता है. बिकॉज आप लव का मीनिंग नहीं समझते. वी डोंट अंडरस्टैंड इट. बट अंडरस्टैंड कि जब हम बॉडी और माइंड के एसोसिएशन से निकल जाते हैं एंड वी स्टार्ट, हमारा ईगो हमें अलाउ नहीं करता टू सी दैट वी आर ऑल वन. आज कोशिश करो टू सी एवरीबडी वन. हमारा ईगो बोलता है नहीं नहीं, डोंट. बट आई वुड सजेस्ट एवरीबडी स्टार्ट मेडिटेटिंग. व्हेन यू मेडिटेट यू इमेजिन दैट योर सोल इज गेटिंग कनेक्टेड विद ऑल अदर सोल्स. आप जितना सबके साथ वन फील करोगे उतना उतना आपका ईगो अपने आप डिसॉल्व होता जाएगा. जिस दिन आपने सोल से कनेक्ट किया आपका जो कर्म है ऐसे ही निकल. बिकॉज कर्म तो माइंड और बॉडी का होता है. जो कर्म का बैग है, जो चित्त है, कहते हैं ना अगर तुमने गुरु से कनेक्ट किया या भगवान से कनेक्ट किया तो तुम्हारे कर्म वैसे ही निकल जाते हैं. क्योंकि आज कर्म जो है वो दे आर ओनली एसोसिएटेड विद माइंड एंड बॉडी. जिस दिन आपने सोल से ही कनेक्ट कर लिया आपका पूरा कर्म का बैग ऐसे कैसे निकल गया. यू डोंट हैव टू लिव देम, यू डोंट हैव टू सफर देम. इट इज जस्ट गॉन लाइक दिस. So understand that when you connect to your soul, then you have to connect to all the other souls and realize that we are all one. तब आपकी जो yearning है, आपकी जो unfulfillment है, आपका मन है कि मैं possess कर लूँ, मैं ये ले लूँ, I have a friend, I meet people, I get love from others, वो dissolve हो जाएगा. Because जब हम हैं ही one, तो हमें कहाँ किसी से प्यार चाहिए? हम हैं ही one. Yes or no? When we realize कि हम हैं ही one, एंड देयर इज कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं किसी से एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कहीं किसी से प्यार नहीं चाहिए. आवर सफरिंग एंड यर्निंग इज ओनली द नीड टू फील वन विद एवरीबडी एंड वन विद ईच अदर. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस आग्नेय चक्र. One question: do you need a guru to go to your spiritual or your soul level in life? I firmly believe that we don't need a guru. We don't need a guru. I feel that what we have to do is we can always read books, meditate, and yes, you can listen to people's talks. What nowadays people associate a guru is that they feel that we have to owe allegiance to one person.
पर अंडरस्टैंड वन पर्सन इज नॉट इनफ फॉर योर नीड्स. आज आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल अलग है, आज आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है. आपको कुछ ज्ञान पसंद आता है, किसी को क्रिया पसंद आती है, किसी को मेडिटेशन पसंद आती है, किसी को ज्ञान पसंद आता है, किसी को भक्ति पसंद आती है. कोई पर्सन चाहता है जहाँ भजन चल रहे हो मैं वहाँ जाऊँ. बिकॉज थ्रू भक्ति ऑल्सो यू कैन अलाइन वननेस विद गॉड, विद द गॉड कॉन्शियसनेस. So everybody has got a different taste. So what you should be doing, और हर गुरु एक अलग अलग एस्पेक्ट बताता है. वो तत्व है गुरु तत्व. इट इज गुरु तत्व. इट इज इनसाइड यू. एक्चुअली आपका गुरु आपके अंदर ही है. जितने भी गुरु हैं, वशिष्ठ, अत्रि, सारे गुरु जो हैं वो एक एक गुरु हर पर्सन के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है. हम जो गलती करते हैं इस दुनिया में, वी गो फॉर एक्सटर्नल गुरुस एंड देन वी ओव अलेजियंस टू देम एंड देन वी बिकम डिपेंडेंट ऑन देम. And we then start expecting from them. We get attached and moha with the guru's body. Again हम फंस गए वही illusion में. We keep on yearning for the guru. So understand कि every guru, you know, he teaches you some aspect of your life. You can listen to his teachings, but don't get attached to the physical form of the guru. He is just a lesson. He is just a teaching. उसको you take him as a partnership. He is telling you something. You absorb what you understand. जब तक आपको लगता है कि he has got ज्ञान, which I need, take it from him. Then jump to the next guru. If you feel I need another guru, but then I am finding nowadays lot of people who have lots and lots of ज्ञान, but zero understanding. इसका क्या फायदा? इतना ज्ञान पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसका क्या फायदा? उन्होंने इतनी नॉलेज दिमाग में भर ली है, दे नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ, पूरा गीता, वेद, एवरीथिंग इज देयर इन देयर माइंड, बट दे डोंट वांट टू अप्लाई. व्हाई दे डोंट वांट टू अप्लाई? बिकॉज दे आर स्टिल यूजिंग देयर माइंड, बॉडी, सेंसेस. सो ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट. सो यू शुड एसोसिएट विद द पर्सन, राइट? जब तक आपको लगता है कि आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम हियर, अटेंड दैट पर्सन. देन इफ यू फील कहीं और से, पर जब तक आपके अंदर सर्च है ना, बस उसी के लिए जाओ. एक टाइम आता है यू हैव टू सरेंडर एवरीबॉडी एंड गो विद इन, क्योंकि योर गुरु हैज टू टेक चार्ज. अभी जो गुरु है आपका, ऑल द गाइडेंस दैट यू आर लिसनिंग, ऑल द टॉक्स दैट यू आर लिसनिंग, दे आर बेसिंग बी नॉट लिसन बाय द सोल. सोल को कोई नॉलेज नहीं चाहिए, सोल तो कंप्लीट है. ये सारा जो सुन रहा है आपका माइंड और बॉडी सुन. सो अंडरस्टैंड, योर माइंड एंड बॉडी आर लिसनिंग. आपके सोल को किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए. बट सोल को अच्छा तो लगता है ना. सोल इज हैप्पी, सोल ही खींच के लाता है आपको. योर सोल पुल्स यू हियर. योर सोल इज द वन व्हिच अट्रैक्ट्स. इन लाइफ नथिंग कम्स, इट इज चोजन. मेनी पीपल सी द एड, यू चूज टू गो टू द एड. इट इज अ चॉइस ऑफ योर सोल ओनली, बिकॉज योर सोल विल टेल योर बॉडी गो, टेक आउट योर हॉलीडे एंड गो. सो अंडरस्टैंड, इट्स अ चॉइस ऑफ द सोल. Yes. जब मेडिटेशन करते हैं बार बार थॉट्स आते रहते हैं, माइंड स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना है? पहले तो वो थॉट को देखो. स्टार्टिंग में मेडिटेशन जो है ना वो थॉट्स पे होती है. यू कांट हैव मेडिटेशन विदाउट थॉट्स. तो स्टार्टिंग में लुक एट द थॉट और सोचो कि वो थॉट क्या है. इज इट द थॉट ऑफ फियर? इज इट द थॉट ऑफ वरी? आज अगर आपकी आउटसाइड सिचुएशन इज नॉट हैप्पी, इज नॉट गुड, यू कांट मेडिटेट. इट्स नॉट पॉसिबल कि बाहर तो बीवी बच्चे रुल रहे हैं और यहाँ मेडिटेट करके भगवान को याद कर रहे हैं. यू टू फर्स्ट सॉल्व इट. तो यू हैव टू फर्स्ट गेट रिड ऑफ दैट स्नेक. तो आप अपने थॉट को देखो और मेडिटेट करके वो फियर को रिलीज करो, हैंडल द सिचुएशन एंड देन गो बैक इनटू मेडिटेशन. सो मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिज्म. मेडिटेशन इज नॉट गोइंग अवे. मेडिटेशन इज कनेक्टिंग टू द सोल फॉर द गाइडेंस ऑफ द सोल. व्हाट शुड आई डू? But to touch the soul, you have to first release the barrier of the mind and the body. Because of fears, they don't allow you to connect. तो पहले आप अपना thought देखो. Initially, few months तक, your meditation will be only a thought-based meditation. You will only think. आप केवल सोचते हो meditation. You see your fears, you see your problems. उनको देखो और उनको release करते हो. आपको thoughtless होने की कोई जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकती. Okay? Last two questions. Is there any difference in levels of love?
Because especially in English language, when a man loves a woman, they say fallen in love. And when you love God or spirituality, risen in love. So you are falling from one level to down and rising. So is there any difference in Very, level? very beautiful question. See, understand कि actually जो love है, love actually कुछ होता ही नहीं है. There is nothing called love. There is something what you can call जो bodily attraction होता है between a man and a woman. That attraction is very natural because they want to start a family. Or we can say a love between a mother and child. It shows by care, by touch. A love between a student and a teacher. A love between friends where you like to embrace the other person. Is a love of embrace and care. That is a love. पर love का कोई level नहीं होता. Love तो love है. But understand कि जितना जितना हम life में evolve होते जाते हैं, उतना उतना we start meeting people who are very similar to how we are. हमारी जिंदगी भर की जो yearning है is actually searching a ideal person to love. Like West में एक theory है soulmate. West में कहते हैं कि you have got one soulmate and everybody keeps on running for that soulmate. कि there is one person जो बिल्कुल हमारे जैसा होगा who will love us 100%. तो ये theory है and lot of people believe that they find their soulmate and they live with them. It could be even two people, it could be even two men, or it could be a man and a woman. But they feel that you have to find a soulmate. So the real secret of this is जैसे जैसे आप प्योर होते जाते हो, इनिशियली आपका लव केवल फिजिकल होता है. A man, woman is just physical. You only look at the physical aspect. After that you become more evolved. You take care of the emotional aspect of the person also. And धीरे धीरे as you evolve in your mind, understanding, in your emotions, in your self-control, you start meeting people who are more and more similar to you. Similar to you. Initially when you are very negative, because of vritti you attract people who are all the time negative. आपको हमेशा negative लोग आप attract करते हो because of your vrittis. You attract negativity. पर जैसे जैसे आप positive होते जाते हो, आपके आसपास के लोग भी positive होते जाते हैं. Believe that it is possible that you will not meet a single negative person in your life. Not a single person. जितना जितना आप pure होते जाते हो, आपकी life smooth होती जाती है. There is absolutely no problem in life. It is possible to live a life where there is zero suffering, where there is zero pain, zero obstacles, zero problems. It is 100% possible. 100% possible. I am living that life. So this is what I want to tell people. It is possible. There are no challenges. There are no obstacles. It is just a desire. What you want to do, you do it. How much you want to do, you do. What level you want to do, you do. So it is very much possible where there is a zero pain, zero anger, zero suffering, zero problems. And best is zero negative people coming to you. Zero. There is nobody who is negative. It is not that you are making a person positive. He is not negative. There is no negative person. Nobody can cheat you. Nobody can take advantage. Nobody is doing anything wrong to you. It is your energy which attracts those people. So the more and more we become pure in our thoughts, in our mind, the people who start coming to you are more pure. And then suddenly what happens? We meet few people who look like us, who feel like us, who think like us. And we feel, oh God, they are a mirror, they are a mirror. They are my soulmates. He's just like me, she's just like me. You start feeling कि ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा है. And then slowly you realize कि this is again one experience. क्योंकि एक पर्सन मेरे जैसा है तो बाकी सारे भी आपके जैसे हैं. जैसे हम पहले लव रियलाइज करते हैं मूलाधार में और धीरे धीरे हम ऊपर आके अपनी बाउंड्री को बड़ा करते जाते हैं, वैसे ही once you meet a soulmate, once you start meeting people who are so much like you start realizing it is possible for you to be replicated in front. And when you realize you can be replicated in front, फिर धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ता है. Then everybody looks like, सबकी शक्ल तुम्हारी जैसी लगती है. And you feel you are in everybody. आपको लगता है सब आपके अंदर ही है. Everybody is you only. और जब oneness आती है तो हमारे अंदर से doubt, fear, pain totally निकल जाता है. किससे डरो, किसको डाउट करो? Why to have fear? तो तब आपका जो चक्रा है ना, अनाहटा चक्रा, वो पूरी तरह blossom होता है. Then the love sprouts. Because then you are connected with everybody. Everybody you are connected. You realize you are all one. और तब
ईगो के पास जगह ही नहीं होती, ईगो के पास हथियार ही नहीं होते। वो रिजाइन करके अपना जॉब छोड़ के he submits his resignation papers. So separatism and love. Ego is fear, edging God out, edging us gods between each other. So next time maybe we will continue Agnya Chakra, because Agnya Chakra इतना deep है कि last time जब मैंने Agnya Chakra किया था, I did it in 4 parts. So I think I would like to do Agnya Chakra part 2 next time, because there are a lot of meditations we need to dissolve egos. क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे से compare करेंगे, we are not able to actually come out. We can't think of each other as one. जब तक हम ये habit, ability to compare with each other, to downgrade a person, to feel superior to another person, to feel angry or to feel the other person is different, जब तक हमने वो negativity नहीं निकाली, तब तक we can't actually even go to the next step. So are we okay to do Agnya Chakra part 2 next time? Yes, definitely. Because this is a very, very powerful chakra. So we will do this chakra next time. And as we said, Rudraksha and gemstones also help a lot to open up this chakra. The gemstone for this chakra is शनि का कौन सा स्टोन है? नीलम. और नीलम बहुत पावरफुल स्टोन है. And every single person in the world can wear नीलम. Every single person. ये मिथ्या है कि it is only meant for few people. आज कुदरत ने अगर फल सबके लिए बनाए, फ्रूट सबके लिए बनाए, कुदरत सबके लिए बनाई है, तो जेम से क्यों वंचित करेगा? क्यों करेगा? हम मोहताज नहीं है पंडितों से पूछने के लिए मैं पहनूं क्या, मेरी कौन सी राशि है, मेरा शनि कब आ रहा है. You don't need. Nobody needs Indian astrologers. The only thing is you should know the science of using gemstone. जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है अगर आपको ये दवाई खानी है, आपको 100 मिलीग्राम्स इतने समय में खानी है. डोसेज पता होना जरूरी है. डोसेज कितनी खानी है, कितने साइज का, कैसे पहनना है. जिसको राइट नॉलेज है, एवरी सिंगल पर्सन कैन वेयर नीलम. एंड नीलम इज सच अ पावरफुल जेमस्टोन. मेरे सारे बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं, ऑल माई 4 किड्स वेयर नीलम. बिकॉज आजकल के बच्चे ना, उनका आज्ञा चक्र बहुत ब्लॉक होता है. देयर लॉट ऑफ आज्ञा चक्र इज ब्लॉक बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बट दे आर वेरी स्टबर्न. बच्चे आजकल दे आर वेरी स्टबर्न, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट. दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर. एंड दैट इज वाई मैक्सिमम बच्चों को चश्मा होता है. आई ऑलवेज टेल माई किड्स कि मुझे इस एज में मेरी आँख बिल्कुल विजन 100 विजन जो भी होती है, फुल होती है विजन. और बच्चों को अभी से सबको चश्मा लग गया. बिकॉज I am seeing computers from the last 15 years, since last 25 years, from morning to evening I am in front of computer. Because I am a software programmer and now my whole website. So whole day we are in front of computer. It's not related to computer, it's all related to the chakras. So basically नीलम is a very powerful gemstone. आज अगर आपका बच्चा जिद्दी है, he's not ready to sit down, he's not ready to focus, he's not ready to study, he doesn't listen to you. उसमें behavioral tantrums है, anger है, tantrum है, and physically you see that उसकी नाक बंद रहती है, उसको साइनस रहता है, उसको हल्का सा हेडेक भी हो जाता है, उसका सिर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है कि मेरा सिर गर्म हो रहा है. he gets angry fast. So understand आज्ञा चक्र ब्लॉक है. तो उसके लिए a very good stone is नीलम. And Rudraksha, a very powerful Rudraksha for the Agnya Chakra is 17, even 14 mukhi works on the Agnya Chakra because it helps you to control the senses via Hanuman. And 17 mukhi also works on the Agnya Chakra. जैसे आप ये रुद्राक्ष पहनते हो, within 10 days your sinus goes away. First proof. Second, headache goes away. Anger goes away. Second proof. And this happens in just 10 to 12 days of it. क्योंकि आप जो भी चीज़ पहनते हो उसको रिजल्ट तो देना चाहिए. फर्स्ट ऑन योर फिजिकल बॉडी, देन ऑन योर इमोशनल बॉडी. तो आप ये जैसे ही रुद्राक्ष या जेम्स पहनते हो, आपका हेडेक चला जाता है, साइनस चला जाता है, गुस्सा चला जाता है. एंड देन यू सी दैट आई एम एबल टू सी माई थिंग्स बेटर. आज्ञा चक्र जब खुलता है, इनिशियली हम लोग को केवल दायरा इतना सा दिखता है. जब आज्ञा चक्र जैसे जैसे आप ये मेडिटेशन करो, अवेयरनेस करो, आपको दायरा आगे दिखता है, आगे दिखता है, आगे दिखता है. आपको पूरा घर एक बार में दिख जाता है. मेरे घर में किस कोने में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या हो सकता है, इस एक्शन का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है. यू आर एबल टू सी थिंग्स वेरी डीप इनसाइड. आपको चीज़ें बहुत डेप्थ में दिखती हैं. एंड दैट हेल्प्स यू टू मेक द करेक्ट डिसीजन एट द राइट टाइम. Otherwise, suddenly you
left with a shock कि आपकी business unstable हो गई, आपके customers चले गए, because you are not able to capture the errors at the right time. जो जैसे जैसे आगे चक्र खुलता है, you are able to see things more deeply inside. And these Rudrash can be worn lifelong. Lifelong they can be worn, but understand they don't make you dependent. आजकल again let us not create a rikti. That 17 book is going to help me lifelong. They will only help you till you need it. जब आप already आपका चक्र खुल गया है, एक टाइम के बाद you will realize I don't need it. It could happen in 2 years, it could happen in 3 years. So you don't, nothing is permanent in this life, nothing. जब तक मन है तब तक पहनो, नहीं मन है तो Last is connected to some like the business also, a different kind of business man can wear a different kind of class connected that way. it's a choice. See, once you know what you want to do, you can do any kind of business. Because See, somewhere I read it, the 14 for some speculators or share market traders, where the 14 helps them. it's association. क्योंकि आज आपका आगे चक्र खुलता है, तो they say कि you will be very good in share market. ये माया बोलती है, माया माया कहती है कि भाई शेयर मार्केट में हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल लोग कहेंगे आगे चक्र खुलेगा, राइट? सो मेंटल बोलेंगे विजडम बढ़ेगा, इंटेलेक्ट बढ़ेगा. सो इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट. और फिजिकल पर्सन कहेगा हेडेक और साइनस जाएगा, बट इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट अंडरस्टैंड ओपनिंग ऑफ एवरी सिंगल चक्र एक्चुअली हेल्प्स यू इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर करियर. आज आपकी कोई भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी, इट कुड बी लाइक अ खांसी ऑल्सो कमिंग टू यू, इट इज अ ब्लॉक्ड. आज आपके बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, इट इज नॉट बिकॉज आपका पोस्चर ऐसा है, आपका पैर दर्द करता है, आपकी पीठ दर्द करती है, आपको बार बार खांसी जुकाम होता है, आपको नींद नहीं आती, आपके कंधे दुखते हैं. इट इज नॉट बिकॉज मेरा पोस्चर ऐसा है, मैं झुक के करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं स्कूटर चलाता हूँ. एवरीथिंग हैपन्स ओनली बिकॉज योर चक्र इज, आपका चक्र ब्लॉक होता है. एंड व्हेन यू वेयर दीज रेमेडीज और यू अटेंड चक्र योग, यू गेट द ज्ञान वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, you are able to release that, it opens up. Ma'am, what happens? We see very young children getting specs this stage. Why it happens? So that's what. See, some is, karma is coming, no? The rittis are coming from past birth. Yeah, the rittis and all are coming from past birth. These are all lessons which the soul is learning. We can't evaluate everything as per this birth. We cannot go back to the past birth. So many things are coming because of it. Daily routine, is it possible that we can have self by self identify that this chakra is imbalanced or 100%. I think in the next class we will do an exercise where all of us will find out कि मेरा कौन सा चक्र बंद है. स्टार्टिंग में आते से सबसे पहले हम खुद की एनालिसिस करेंगे. We will know कि हम कहाँ पर हैं, where we have to go और हमारा चक्र कितना ब्लॉक है. सबसे पहले आके वो एनालिसिस करेंगे और फिर क्लास शुरू होगी. ओके, थैंक यू. Thank you.